I am Sister Alta, Catholic Mission High School Secondary, Jhabua, class 6, subject English, lesson number 9, the cobbler and the fairies. Cobbler means mochi and fairies means pariya. Okay? So, children will learn the lesson number 9, the cobbler and the pariya. Dinu is cobbler and Dhanya is wife. They have their own business. Shoes, they make shoes. Shoes का मतलब जूते बनाते. बाजार से चमड़ा लेदर खरीद करके वो अपना जूते बिजनेस उनका एक छोटा सा कारखाना है. ये कारखाने में दोनों पति पत्नी काम करते हैं, दीनू और धनिया. तो आइए चिल्ड्रन, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स. विल लर्न द लेसन नंबर 9, द कबलर एंड द Paris. Cobbler and the Paris. Paris means pariya. Pariya or cobbler means mochi. So, children, open your textbooks and pay attention. What I am reading, that you pay attention and point out your finger. First, you have to point out. Unless and until you point out your finger, then you will learn the lesson. What spelling and where the lesson will going to start. If you are not going to pay attention, you will not learn any lesson or any meaning you will not understand. First and foremost, you have to pay the attention. Now we are in the house, lockdown, and your house, there are no children to disturb your friends, nobody. You and your textbooks. Then now I am reading. Point out your finger. Character. Characters means patra. Dinu, the cobbler. Cobbler means mochi. Dhanya is wife. The fairies. Fairies का मतलब परियां और narrator. और Dinu's workshop and he and his wife are busy with making shoes with their stools. Dhanya, Dinu, they have their own business and they make their workshop shoes. इसका मतलब Dinu एक मोची है और इसकी वाइफ धनिया, उसके साथ दोनों जन अपने छोटा सा उनका एक कारखाना है. एक कारखाने में क्या करते हैं? जूते बनाते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ ओपन योर बुक टेक्स्ट. पे अटेंशन. Dinu, this is the last piece of leather and we do not have money to buy any more. I am afraid we will have no food from tomorrow. देखो, दीनू बोल रहा है कि ये एक चमड़े का आखिर टुकड़ा है और हमारे पास कोई खरीद के लिए पैसा नहीं है. मैं डरा हूँ कि कल से हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं. दीनू बोल रहा है कि ये चमड़े का आज लास्ट टुकड़ा है और मैं काट रहा हूँ और इसके बिना मुझे खरीद करने के लिए कुछ भी चीज नहीं है. कल हमको खाना नहीं मिलेगा अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो. इसका मतलब Dinu, this is the last piece of leather and we do not have money to buy anymore. I am afraid we will have no food from tomorrow. Dinu so frightened that he had
only the last piece of leather, and he last piece leather he has cut to make the shoes. If you are not do, tomorrow we have no food. Okay, understood? Dania, do not worry, God will help us and everything will be all right. क्या दनिया ने बोला, दिनू को बोला कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेगा, भगवान हमारी मदद करेगा। समझ में आया? धनिया ने क्या बोला? डू नॉट वरी, गॉड विल हेल्प अस एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके, नरेटर, नरेटर, नरेटर मीन्स सूत्रधार, नरेटर मीन्स सूत्रधार, नरेटर। Dinu cut his last piece of leather at night and he went to bed. He was worried. When he woke up the next morning and went to his workshop, he was surprised. सूत्रधार, नरेटर ने क्या करा? दिनू ने रात को एक चमड़े का आखिर टुकड़ा काटा और सोने गया। वह चिंतित था कि अगली सुबह जब वह जगा हुआ अपने कारखाने गया और आश्चर्यचकित हो गया। दिनू ने क्या करा? एक आखिर लास्ट पीस काटा और वो सोने गया और सुबह हो गई, वो चिंतित था और उसने देखा और वो सरप्राइज हो गया। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। धनिया, दिनू, धनिया, धनिया, come here, look at this, a new pair of shoes shining bright. दिनू, धनिया, धनिया, यहाँ आओ, यह देखो कि जूते एक नया जोड़ा चमका रहा है। दिनू ने धनिया को बोला, धनिया, धनिया, यहाँ पे आओ और देखो एक नया जूता चमका रहा है। ओके, दिनू, धनिया, दे आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। धनिया, दे आर ब्यूटीफुल, आई न्यू everything would be all right, but who made these shoes for us? देखो, धनिया, ये सुंदर है, मैं जानती हूँ कि सब ये किसने बनाया। एक नया जोड़ा चमका रहा है, एक नया जोड़ा चमका रहा है। क्यों? इसमें दिनू बहुत चिंतित था कि उसने लास्ट पीस काटा था और वो चिंतित सोने गया। सुबह हो गया, सुबह उठ के आ गया और देखा तो क्या था? शूज बना, जूता बना के रखा था और वो बहुत चमकीला रहा था। और उसने अपनी पत्नी को बोला, धनिया, धनिया, यहाँ पे आके देखो कि कितना जूता चमकीला बना हुआ है। समझ में आया बच्चों? दिनू, आई डू नॉट नो, दिनू, आई डू नॉट, मुझे कोई पता नहीं है। डू नॉट नो। नरेटर, दिनू वेंट टू मार्केट एंड सोल्ड द शूज, ही ब्रॉट मोर लेदर विद द मनी, द नाइट ऑल्सो ही कट द लेदर फॉर शूज and found them swing and ready in the morning. The same thing continued night after night. Continue night after night. Swing का मतलब सिले, swing का मतलब सिले।
A few days later, Dinu to his wife, how can this be true? After all, who make the shoes for us? Let us hide behind the door together and find out who our friends are. Hide का मतलब इधर दिया है hide. Hide mean छिपना. हम छिप के देखेंगे कि कौन आते ये रात को शूज बनाने के लिए. ओके. Narrator, सूत्रधार. Okay. That night they had behind the door and went. After some time they saw 5 परीस. 5 परियां आई थी. Enter the workshop. 5 परियां कहाँ है? उनके कारखाने में आए थे. They were carrying tiny cobbler stools. They were carrying का मतलब वो लेके आ रहे थे मोची के स्टूल. In their hand they sang and danced. वो नाचे और काम करे. As they sat down to make the shoes. इसका दिनू मैं नहीं जानता हूँ. दिनू बोलता है दिनू I do not know मैं नहीं जानता हूँ. सूत्रधार दिनू बाजार गया और उसने क्या करा? जूते बेचे दिए और उस जूते से लेदर लेके आया और काटा और क्या करा? रात को रख दिया और क्या करा? 5 परियां आके नाच डांस कर वो मोची का ये लेके 5 जने वापस क्या करा? शूज बना दिया, जो जूते बना दिया. दिनू अपनी पत्नी से ये कैसे सच हो सकता है? हाउ मच ट्रू. सच का मतलब ट्रू. सच का मतलब ट्रू. ये कैसे सच होता है कि रात को कोई आते हैं और शूज बना के जाते हैं? वो भी आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाते थे. क्या करके आते थे? सरप्राइज हो जाते. परीस, वी आर द 5 बिजी परीस. वी लाइक टू हेल्प द नीडी. नीडी का मतलब क्या है? जरूरत, मदद करने वाले. नीडी का मतलब जरूरत. वी आर टू फीड एवरीवन. वी हैव टू फीड एवरीवन एक्सेप्ट द वन हु आर ग्रीडी. ग्रीडी का मतलब क्या है? ग्रीडी में लालची. ग्रीडी का मतलब लालची. नरेटर दे finished their work and went away. Dinu and his wife entered the workshop. Dinu, such a wonderful and little furries they are. Such a wonderful मतलब कि such a wonderful furries they came and they work. Dania. It makes someone nice clothes for them. Furries. धनिया क्या बोल रही है कि इनको भी हम क्या करेंगे? एक अच्छी से कपड़े बनाएंगे. ओके. नरेटर धनिया swing clothes for the furries and the following night when the furries came to the workshop they were surprised. Surprise मतलब आश्चर्यचकित. They found 5 परीस. धनिया ने और दिनू ने 5 परियों को देखा. वर्कशॉप में थे, उनके कारखाने में आके उन्हें रात को देखा. ये क्या गए थे? धनिया और दिनू छिप गए और ये लोगों ने क्या करा? वो 5 परियों को देखा और उनको क्या करा? वो लोगों ने कपड़ा सिलाया था. They put them on happy. Happy means आनंद. And sang and dance. वो गाना गाया और लोगों ने नाच गानी
करा। काइंडनेस एंड कंटिन्यू दे वर रेगुलर, दे लिव हैप्पीली एवरी आफ्टर। देखो अगली रात परियां कारखाने में पहुंच गए और आश्चर्यचकित हो गई। इस लेसन में हमको क्या सिखाया जाता है कि देखो एक दीनू और धनिया, ये कौन थे? पति पत्नी थे और वो अपना क्या करते थे? अपना व्यवसाय जूते बनाते थे। जूते बनाते एक दिन इनको जूते बना, बहुत गरीबी आई, जूते नहीं थे। एक जूता बना के वो लोगों ने खाने के लिए बहुत, उनको पैसे की बहुत ये लग रही थी, पैसे की बहुत कमियां थी। तो क्या करा, वो लोगों ने एक पीस काट के सोने के लिए गए और दिनू चिंतित हो गया। परंतु धनिया ने क्या करा, उनको धीर दिया और बोला कि गॉड विल हेल्प, भगवान हमारे साथ है, भगवान जरूर मदद करेगा। उसी रात में क्या करे, परियां आके जूते बनाया और सुबह दिनू उठ के बाजार में जाके जूते बेच लिया, वापस लेदर लेके आया, वापस काट लिया और उनको भी आश्चर्यचकित हो गया कि कौन आता है रात को ये कारखाने में और जूते बनाते हैं। तो एक दिन ये दोनों पति पत्नी छुप गए और क्या करा, ये लोगों ने देखा कि 5 परियां नाच गाने से उनके कारखाने में अंदर थे और जूते बना रहे थे। तो धनिया ने और दिनू ने सोचा कि 5 जनों को ये लोगों ने क्या करा, कपड़े सिलाए और वो उसी एक दिन रात को खुशियां मनाया, आनंद में नाच गाने करके। इसी में लेसन खत्म होता है। ये लेसन में हमको क्या सिखाया देता है कि दिनू और धनिया क्या थे, गरीब थे और उनको भगवान ने क्या करा, परियों को भेजा। परियों को भेज के परियों ने उनकी मदद करी मोची बनाने की और ये जूते बनाने का मदद करी और दिनू ने जाके बाजार में बेच लिया और दिनू ने भी परियों को कपड़े, दिनू और धनिया ने कपड़े सिला के मदद करी दोनों को, परियों को। इस लेसन में हमको ऐसे सिखाया जाता है कि बच्चे इस लॉकडाउन में हम क्या करना चाहिए, हमको दूसरे को मदद करना चाहिए। जो अभी गरीबों की नहीं है कि जो अपना पड़ोसी है, पहले कौन है, अपना पड़ोसी अपने को मदद करेंगे। जो भी अपने को जरूरत है उनकी भी जरूरत के लिए हम ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास है। डू नॉट बी सो मच अटैच्ड टू थिंग्स बट यू हैव टू डिटैच एंड हेल्प ईच अदर, then only God will bless us. Okay children, and we learn the lesson very meaningfully. Read and learn the spelling whatever I am teaching you and we learn. All right means सब ठीक है, anyway जो कुछ भी, beautiful means सुंदर, behind means पीछे, bless means आशीर्वाद, bright means चमकाता, busy means व्यस्त, कैरेक्टर मीन्स नाटक के पात्र, कबलर मीन्स मोची, एंटर मीन्स प्रवेश करना, ग्रीडी मीन्स लालची, हमको लालची नहीं होना, ग्रीडी नहीं होना था। हाइट मीन्स चिपना एंड हरियप मीन्स जल्दी करना, नीडी मीन्स जरूर, पैर मीन्स जोड़ी, पैर में जोड़ी। क्या करा, परियों ने आके एक जूते की जोड़ी चमकीली बनाई। स्विंग मीन्स सिलाने। यही में हमारा लेसन खत्म होता है। बच्चे लर्न द लेसन वेरी नाइसली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।